Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope so. All of you will be fine. All of you will be doing well. Dear students, आज के लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस को डिस्कस करना है और बेसिकली ये रियल एनालिसिस का पहला लेक्चर है जो कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो पीपीएससी, एफपीएससी, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जीबी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएस और मास्टर कर रहे हैं और अपने बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं और पीपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में हार्ड वर्क करना चाहते हैं, तो उन तमाम के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारा मटेरियल अपलोड होता रहेगा और हो रहा है। सो आप तमाम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे फ़ायदा हासिल करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 1 ऑफ रियल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज़ नंबर। The symbol which are used in counting are called numbers. Numbers क्या होते हैं? What are numbers? Simple definition of numbers is anything the symbolism which are using to count the things are called numbers. After that is rational number. What are rational number? The set of rational numbers is defined as capital Q is equal to the set x is equal to p by q such that pq belong to z and q is not equal to 0, because अगर हम किसी भी चीज़ को dear students we are going to divide by 0 then the remainder is undefined. हमारे पास जो उसका आंसर आ रहा होता है वो अनडिफाइंड फॉर्म में आ रहा होता है। दैट्स वाई हमने q एक ऐसा इंटीजर लेना होता है जो क्या है 0 ना हो। आफ्टर दैट इज़ इरेशनल नंबर्स। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? The set of irrational numbers is defined as q prime is equal to the set x such that x is not equal to p by q such that p comma q belong to z and q is not equal to 0. Any number which cannot be expressible in the form of p by q is called irrational numbers. सो सेट ऑफ रैशनल को क्यू क्वोशिएंट नंबर भी बोलते हैं और जो इरेशनल नंबर का सेट होता है डियर स्टूडेंट्स इसको हम नॉन क्वोशिएंट नंबर भी बोलते हैं। रैशनल और इरेशनल की एक और भी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। तीन तरह के आपके पास डेसिमल्स होते हैं। फर्स्ट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, other are recurring decimals, and third one is not recurring non-terminating decimals. Now first of all is termination decimal or terminating decimals. Terminating decimals कौन से होते हैं? A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal. Terminating decimals has finite decimal part. It means their decimal part is going to end after some digits. Examples are given over here: 202.04, 0.000416 and 10.345 are example of terminating decimals. Remark: since a terminating decimal can also be converted into common fraction, so every terminating decimal represents a rational number represent करता है। After that is recurring decimal. Recurring means anything which is going to repeat itself times and again is called recurring decimal. A recurring or periodic decimal is a decimal in which one or more digits repeats indefinitely के times and again बार बार infinitely they are going to repeat themselves in decimal part. Examples are 0.333 and so on. Other is 0.24242424 and so on, and 2.3 bar are examples of recurring decimal. 3 bar means 2.33333. 3 is going to repeat itself times and again. Remark: since a recurring decimal can also be converted into common fraction, so every recurring decimal represents a rational number as well. It means dear students कि जहाँ तक जो है टर्मिनेशन डेसिमल हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या recurring डेसिमल हो, दोनों क्या होंगे आपके पास रैशनल नंबर्स में ही आएंगे।
After that is non-terminating non-recurring decimal, which is defined as a non-terminating non-recurring decimal is a decimal which neither terminate nor it is recurring, कि ये ना ही आपके पास क्या है टर्मिनेट होता है और ना ही रैकर करता है, ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो आपके पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हेयर, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। Remark, it is not possible to convert such a decimal into common fraction, कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको आप किसी भी कॉमन फ्रैक्शन में तहलील नहीं कर सकते हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल आर रिप्रेजेंटेड एज इरेशनल नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखी है और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में डिस्कस किया है अभी तक कि उनमें क्या चीज़ है। आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, रैकरिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल्स हैं। जो टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल्स हैं वो रैशनल नंबर मिलके बनाते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग हैं वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। आफ्टर दैट इज़ next page, page number 2 of our document is prime number. So what is prime number? Dear students, अभी तक हमने जो prime number की definition देखी है that is a number p which is divisible by 1 and itself only is called prime number. अब यहाँ पर अगर आप इस डेफिनेशन को भी मद्देनज़र रखें तो बहुत अच्छी न्यू डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। अ नंबर p हैविंग एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स, के प्राइम नंबर के 4 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? 1 -1 p एंड -p, 1 -1 p एंड -p वेयर p इज़ प्राइम। सो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे? अभी तक हमने जो पढ़े थे हम 2 की बात कर रहे थे कि ए नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, कि जिसको 1 डिवाइड कर रहा और वो अपने आप से डिवाइड हो रहा हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते थे। लेकिन जहाँ पर न्यू डेफिनेशन है ए नंबर p having exactly 4 factors which are 1 -1 p and -p is called a prime number. After that is composite number. composite numbers क्या होते हैं? composite numbers की क्लियर कट डेफिनेशन है कि एक ऐसा नंबर जो 1 भी ना हो और प्राइम भी ना हो। द नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, कि कंपोजिट नंबर कंपोजिशन से मिलते हैं, इनके आपको फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। द नंबर्स एक्सेप्ट 1, के एक ऐसे नंबर जो 1 भी ना हो और प्राइम भी ना हो तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? दे विल फॉल इन कंपोजिट नंबर्स। After that we have a theorem, let n be an integer which is not a perfect square, then square root n is irrational. ये बड़ा ही कॉमन और बहुत ही मशहूर सा थ्योरम है कि when n is a prime then square root n is irrational। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि let n be an integer which is नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, के एक ऐसा इंटीजर n जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा आपके पास? इरेशनल होगा उसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट n इज़ इरेशनल इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। After that is well ordering property of set of natural number. Very important property of natural numbers है every non-empty subset of capital N has a least element, के किसी भी नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट होगा तो उसका लीस्ट एलिमेंट लाजमी होगा, कम से कम एलिमेंट उसके पास लाजमी होगा। i.e. s contained in s and s is not equal to 5, then there exists m belonging to capital S such that m is less than or equal to k for all k belonging to s। हमारे पास क्या आता है? वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी में आता है। किस में आता है जी? वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी में आता है जी। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन। इसमें वो क्या कह रहा है? बेसिकली वो बता रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट हो तो उनके जो भी आपके पास इंटीजर्स आ रहे होंगे उनमें एक आर्डर पाया जाएगा।
और यहाँ पर उसने लीस्ट एलिमेंट के बारे में बताया है। तो अगर किसी सेट का लीस्ट एलिमेंट है तो फिर डेफिनेट सी बात है कि उसका क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट भी उस सेट में मौजूद होगा। इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने भी सबसेट होंगे तो उनमें लीस्ट एलिमेंट भी होगा, उनमें मैक्सिमम एलिमेंट भी होगा। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल N हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, i.e. any set containing in N such that S is not equal to 5 then there exists M belonging to S, कि उस नॉन एम्प्टी सेट S में जो कैपिटल N का सबसेट है क्या होगा, एक एलिमेंट M ऐसा भी होगा जो उसके बाकी तमाम एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा। M इज़ लेस देन और इक्वल टू K for all K belonging to capital S. आफ्टर दैट इज़ बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी, बहुत ही वेल नोन इनइक्वालिटी है बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी। ही इज़ सेइंग दैट if x is greater than -1, he is talking about x is greater than -1। सो थोड़ा सा इमेजिन करें, अगर आप -1 से आगे आपने जाना है, -1 से आगे क्या है, -1 से आगे अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 एंड सो ऑन। लेकिन -1 और 0 के दरमियान जो नेगेटिव पॉइंट्स में हैं, पॉइंट 1 है, पॉइंट -2 है, पॉइंट -3 है, पॉइंट -4 हैं, वो भी हमारे पास शामिल होंगे। तो उनको भी आपने माइंड में रखना है। सो बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी ही सेइंग दैट इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -1 देन 1 प्लस एक्स होल पावर n is greater than or equal to 1 plus nx for all n belonging to capital N, कि अगर पावर में कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास आ जाए तो 1 प्लस एक्स होल पावर n है, दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ से थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का भी टच आपको मिल रहा है। बाइनोमियल थ्योरम में वो क्या कहता है, ही सेइंग दैट 1 प्लस एक्स होल पावर n अगर आपके पास आ जाए तो दैट इज़ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 over 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube and so on होता है। तो ये क्योंकि पहली दो टर्म्स को लेकर चल रहा है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो ग्रेटर देन होगी राइट हैंड साइड से। After that we are going to discuss a theorem. He is saying that if r is rational and x is irrational, कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं r और x, उनमें से first one is rational and other is irrational, then their sum and product is irrational. He is saying that r plus x is irrational and r into x is irrational, means कि if you are going to add one rational and one irrational you will get resultant an irrational number, and if you are going to multiply one rational and one irrational then you will get irrational as a product. Next is theorem, between any two rational numbers there exist infinite rational numbers. He is saying that if you have two rational numbers then उनके दरमियान में बीचों बीच बहुत सारे आपके पास irrational rational numbers होंगे। Same result can be applied for irrational number. If you have two irrational number then between them there are many irrational numbers होंगे। सो दैट्स वाई के दो रैशनल के दरमियान बहुत सारे रैशनल भी होंगे, बहुत सारे इरेशनल भी होंगे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि कोई से दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स होते हैं, चाहे रैशनल हों चाहे इरेशनल हों, डेफिनेटली दे कम इन रियल नंबर्स। आफ्टर दैट इज़ ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर फील्ड क्या होता है जी पहली बात तो यह है कि वो फील्ड होगा, और ऑर्डर्ड फील्ड है तो वो किसी ना किसी ऑर्डर को क्या करेगा, ओबे करेगा। ए फील्ड एफ इज़ सेट टू बी एन ऑर्डर्ड फील्ड, कि एक फील्ड ऑर्डर फील्ड कहलाएगा इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। फोर प्रॉपर्टीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी होल्ड्स, पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ लॉ ऑफ ट्राइकोटमी होल्ड। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ट्राइकोटमी? लॉ ऑफ ट्राइकोटमी इज़ रियल नंबर से रिलेटेड एक लॉ है। ही सेइंग दैट कि अगर आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर हो, इफ़ ए कामा बी बिलोंग टू आर, देन उन दो में जो है तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर वन इज़ आइदर ए इज़ इक्वल टू बी, आर ए इज़ ग्रेटर देन बी, आर ए इज़ लेस देन बी। तो ये क्या है, हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइकोटमी है। आफ्टर दैट इज़ सेकंड प्रॉपर्टी कि वो ट्रांजिटिव लॉ होल्ड करेगा। ट्रांजिटिव लॉ इज़ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ ग्रेटर देन
C. Third one is if A is less than B and C is positive, then A plus C is less than B plus C for all A, B, C belonging to N. And fourth one is if A is less than B and C is positive, then AC प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, AC is less than BC for all A, B, C belonging to N. So ये हमारा था ordered field. After that we are going to discuss one theorem which is if A B greater than 0 means के आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं और आपने उनको प्रोडक्ट किया है और आपका जो आंसर आया है वो ग्रेटर देन 0 है. व्हाट इट मीन्स आइदर ए और बी दोनों या तो ग्रेटर देन 0 होंगे और ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन 0 एंड बी इज़ लेस देन 0. या तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. अगर इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो गया तो आपका रिजल्टेंट जो होएगा वो नेगेटिव होएगा. लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ए बी ग्रेटर देन 0 है. इट मीन्स आइदर ए एंड बी आर पॉजिटिव और बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव होते हैं. After that is Aristotelian and non-Aristotelian logics. For reasoning we have to use propositions. Aristotelian logic क्या है और नॉन एरिस्टोटोलियन लॉजिक क्या है उसको समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर प्रोपोजिशंस. प्रोपोजिशंस क्या हैं? प्रोपोजिशन अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन क्या है कि एक ऐसी आपके पास स्टेटमेंट है जिसको आप कैटेगोरिकल आप उसको ट्रू मान सकते हैं या आप उसको फॉल्स मान सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम उसके दोनों स्टेटस नहीं होंगे. दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन. इसकी एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर कुड बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज़ के दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. प्रोपोजिशन कुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स एंड देयर कुड नॉट बी एनी थर्ड पॉसिबिलिटी. कोई थर्ड पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है. दिस इज़ correct so far as mathematics and other exact sciences are concerned. For example, A is equal to B can be either false or true. Similarly, any physical or chemical theory can be either true or false. जहाँ तक एग्जैक्ट साइंसेस की बात है वहाँ तो आपका एरिस्टोटलियन लॉजिक लग सकता है. हाउएवर इन स्टैटिस्टिकल और सोशल साइंसेस it is sometimes not possible to divide all statement into टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासेस में आप उसको डिवाइड नहीं कर पाते हो. सो अरिस्टोटलियन लॉजिक जहाँ से क्या निकलेगी? डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड अरिस्टोटलियन लॉजिक. अरिस्टोटलियन लॉजिक में क्या है, या तो कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो ऐसी लॉजिक को आप क्या कहेंगे? अरिस्टोटलियन लॉजिक कहेंगे. उसके अलावा और कोई भी लॉजिक होगी तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक कहलाएगा. उसके बाद है हमारे पास कुछ सिंबॉलिक लॉजिक हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. एक टेबल दिया गया है पेज नंबर 2 के एंड पर और 3 के स्टार्ट पर. ही सेइंग दैट के सिंबल हैं, हाउ टू रीड उसको कैसे करना है, सिंबल का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है और इस सिंबल के एक्सप्रेशन को कैसे आपने पढ़ना है. सो फर्स्ट वन इज़ नॉट, नॉट पी है, निगेशन ऑफ पी है. सेकंड वन इज़ एंड, पी एंड क्यू है. एंड थर्ड वन इज़ आर, पी आर क्यू है. नेक्स्ट इज़ इफ़ देन इम्प्लाइज है, इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू है. फोर्थ लास्ट वन है इफ़ एंड ओनली इफ़ है, पी if and only if q and p implies q. After that is a very crucial definition of conjunction. What are conjunction? Conjunction of two statements p and q is denoted symbolically as p and q. ये जो and की तरह से है ये आपका and का सिंबल है p and q. A conjunction is considered to be true only both its कंपोनेंट्स आर ट्रू. इट मीन्स के एंड का है तो पी को भी ट्रू होना चाहिए, क्यू को भी ट्रू होना चाहिए. पी क्यू दोनों ट्रू होंगे तो इसका जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. उसके बाद है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन क्या है? डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज़ डिनोटेड सिम्बॉलिकली बाय पी आर क्यू. आर है इसमें, क्या है? पी आर क्यू. It means a disjunction is considered to be true when at least one of the components is true. कि या तो P true हो तो भी नेट रिज़ल्ट ट्रू होगा, Q true हो फिर भी नेट रिज़ल्ट
ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू हों तो फिर भी नेट रिज़ल्ट ट्रू होगा। हाँ, इसमें एक केस होगा कि जब दोनों फॉल्स हो जाए तो पी आर क्यू फॉल्स हो जाएगा। आफ्टर दैट इज़ implication or conditional. What is implication or conditional? Implication is P then Q है, a compound statement of the form if P then Q, also written as P implies Q, is called implication or कंडीशनल कहलाता है। P जो पहले आता है P इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इज़ पहले आने वाला, और हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको। एंड Q इज़ कॉल्ड कंसीक्वेंट और कंक्लूजन, Q को हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन भी कहते हैं और इसका कंसीक्वेंट भी बोला जाता है। ए कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली when the antecedent is true and consequent is false। एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिडेंट फॉल्स हो तो उसी सूरत में ये हमारे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू होगा। उसके बाद मशहूर सा है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल क्या होता है, द प्रोपोजिशन P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अगर आप इनको दोनों को इकट्ठा लिखना चाहें, दोनों कंडीशनल को जो प्रोपोजिशन को जोड़ के लिखना चाहें, क्यों इज़ शार्टली रिटन एज P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q एंड इज़ कॉल्ड द बाय कंडीशनल और इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इट इज़ रेड एज पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर हम इसको रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी कमेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आई है फिर भी कमेंट कीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर भी आप यहाँ पर आकर कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।